हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू संतोष सर क्लासेस। एंड आज के इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ लास्ट मिनट सजेशंस ऑफ MCO01 ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर फॉर दिस जून एग्जाम. And this is the latest study material which I have designed for you. It contains like all the important previous year's question papers and some more suggestions from my side. Now this is last minute suggestions. That means those students who don't have any time due to workload, they can prepare it within 2 to 3 days. So these questions are the most important one and repeatedly came in the exam in the previous years. So before we start the video, let me tell you, those who have not subscribed to my channel yet, kindly subscribe and also press that bell icon so that whenever I will upload the video, you get the notification. Okay, so dear friends, start with the first question. What is organization, and discuss the features and importance of organization. So as we know, it's a process which combines 4 M's: man, money, material and machinery. And when we talk about the features, you can mention that it divides the work, then it forms different departments, specializes for each function, then assignment of duties to different personnel, and lastly reporting. So these are the main 4 features of an organization. And when we talk about the importance, you can mention all this, because it is due to organization that specialization of the employees can be achieved. There is a clear relationship between the authority and responsibility. There is good administration. The resources can be used properly. There is development and growth of the employees. And lastly, it results in the development of the organization as a whole. Let's move on to the next question. Discuss the characteristics of a modern organization with examples and how it is different from classical organization. So as we know, we are living in a modern society, and every organization today is characterized by all these important features. Like, it has smaller manpower, it has a smaller organizational structure, and skilled employees are more in demand. They give more importance to consumer satisfaction, more flexible. They are very much quality conscious. Outsourcing is quite common in the modern organization. They like to use latest technology, and also they have to follow the CSR strategies. And this is the difference which you can write between the modern organization and classical or traditional organization. The next question is examine the classical theory of organization. तो इसके अंदर आपको मेनली इसके जो मेन 4 पिलर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, वो लिखना है. जैसे डिवीजन ऑफ लेबर, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, फॉर्मल स्ट्रक्चर और सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल. तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन दिस 4 पिलर्स. इनको डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है. एंड इसके कुछ लिमिटेशंस भी आप लिख सकते हैं, जैसे ओवर एम्फासिस ऑन द स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल, and actually not much importance given to employees welfare, and it is quite rigid, not very flexible. The next organization theory is bureaucracy theory, which was proposed by Max Weber. और इसके जो important features हैं, कुछ बहुत सारे related है with the classical theory. जैसे ये division of labor और hierarchy, किस तरीके से अथॉरिटी फ्लो करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम. रूल्स, ब्यूरोक्रेसी में रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं. रेशनलिटी पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, एंड इम्पर्सनैलिटी इज़ वेरी मच एब्सेंट हियर. कुछ क्रिटिसिज्म को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी जो आपको करके जाने हैं फॉर द एग्ज़ाम, डिस्कस एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नाउ ये थ्योरी प्रपोज किया था हेनरी फायल ने. हम लोग क्लास 11 से पढ़ के आ रहे हैं, और ये 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो आज भी बहुत पॉपुलर हैं. तो अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी मिलती है एग्ज़ाम में लिखने के लिए, तो यू कैन मेंशन दिस 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. द नेक्स्ट थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ द न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, विच वॉज a very important theory based on the social system. एंड इसके मेन फीचर्स की बात करते हैं तो इट गिव्स मोर इम्पॉर्टेंस टू ह्यूमन रिलेशंस,
and welfare of the employees. It believes in informal organization rather than formal, and it wants the employees to participate in the management decision. It has a flat structure rather than a complex structure. Social systems are given more importance. There is the employees are motivated from time to time, and it also follows Hawthorne experiment. इसके limitations हैं कुछ, because हर theory के आपको limitations और इसके features ये आपको learn करने हैं for the exam. The next theory is modern theory of organization. इसके important जो features हैं, as you can see here, कि यहाँ पे open system पे ज़्यादा focus दिया जाता है. Adaptability काफ़ी important होती है for this organization. Culture is given due importance. एंड इंटरडिसिप्लिनरी ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इस ऑर्गेनाइजेशन का. एंड इस मॉडर्न थ्योरी को अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ सिस्टम थ्योरी एंड कंटिजेंसी थ्योरी. सिस्टम थ्योरी के अंदर ये इनपुट्स, थ्रूपुट्स एंड आउटपुट्स, इनको आपको डिस्क्राइब करना है. यू कैन ऑल्सो मेक ए फ्लो चार्ट ऑफ दिस, और इसके अगेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कॉन्टेम्प्रेरी इशू इन द ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी. तो कोई भी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है तो इसके अंदर कुछ एक इश्यूज़ हैं. ये क्वेश्चन भी काफ़ी कॉमन रहता है एग्ज़ाम में. तो बेसिकली इश्यूज़ निकलते हैं व्हेन देयर इज़ ए न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन. एज वी नो कि ग्लोबलाइजेशन इज़ वेरी मच पॉपुलर इन द वर्ल्ड, एंड इसका भी इम्पैक्ट नाउ वी कैन सी ऑन द ऑर्गेनाइजेशन. एंड डेफिनेटली स्ट्रैटेजीज जो फ्रेम करती है मैनेजमेंट, दैट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. And impact of behavioral changes of the employees, experience level, the work groups, like that. Then sometimes competitors also plays an important impact on the organization. Then also there is a impact of culture and mobility of the people, because they like to change the job whenever they get a good opportunity. The next question: discuss the significance of organizational structure and explain the different types of organizational structure. तो ये है कुछ एक importance में लिख सकते हैं, because it helps to achieve the clear cut authority and responsibility relationship. It helps in better communication and coordination of the employees. It also helps to stimulate creativity among the employees. Then it also helps in the growth and development of the organization and also of the employees, and it also helps to bring any change in the new technology and so on. And when we talk about the different types of organization structure, तो बेसिकली 3 टाइप के हो सकते हैं. उसमें से एक है जो सबसे पहला, दैट इज़ फंक्शनल स्ट्रक्चर, जो जनरली अकॉर्डिंग टू फंक्शंस डिवाइड किया गया है, एंड इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स. दूसरा जो स्ट्रक्चर है, दैट इज़ डिविजनल स्ट्रक्चर, विच इज़ डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट डिविजन्स or departments of the organization. And again the third one is adaptive structure, and इसको again 2 पार्ट में और डिवाइड किया गया है, मैट्रिक्स एंड प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन. तो इनके एग्जांपल्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, ये आपको लर्न करके जाने चाहिए फॉर द एग्जाम. द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट वन: एक्सप्लेन द डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विथ एग्जांपल्स. तो ऑर्गेनाइजेशन के जो डायमेंशंस हैं उसके अंदर सबसे पहला है फॉर्मलाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इसके भी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं. देन कम्स सेंट्रलाइजेशन, विच इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. तो सेंट्रलाइजेशन में ऑल द डिसीजंस आर टेकन एट वन प्लेस. तो इसके भी अगेन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स आप हाईलाइट कर सकते हैं. द थर्डली इज़ कॉम्प्लेक्सिटी. नाउ ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड स्पेशल डिफरेंशिएशन पे फोकस किया जाता है. ओके, let's move on to next question. Why do you study OB, organizational behavior, and how does OB contribute towards building the various skills and values in the organization? So first you will try to write what is this organization behavior, and then about how it helps to build skills and values. तो और OB help करती है मैनेजर्स को खुद को अपने आप को समझने के लिए, आई मीन सेल्फ अंडरस्टैंडिंग. देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपिंग इंटरपर्सनल स्किल्स. इट हेल्प्स इन टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन. और ये जो लीडर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनकी एबिलिटीज़ को और इम्प्रूव करता है.
or it helps to follow the values of the organization, and also it helps to bring creativity and innovation in the organization. Fine. The next question is explain the different perspectives of OB. तो इसमें दो ही हैं, दैट इज़ इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव और इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में लिख सकते हैं. देन स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप पर्सपेक्टिव, इसके भी जो मेन एलिमेंट्स हैं, फीचर्स हैं, उन पे आपको ध्यान देना है. देन थर्डली ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव. ओके फ्रेंड्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ इंडिविजुअल बिहेवियर एंड डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल बिहेवियर. तो एम्प्लॉयज़ के जो बिहेवियर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करते हैं. तो सबसे पहले तो ये डेमोग्राफिक फैक्टर्स जो जनरली एजुकेशन, नेशनलिटी, रेस, एज और सेक्स पे डिपेंड करता है. देन एबिलिटीज़ एंड स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ के परसेप्शंस कैसे हैं, उनके एटीट्यूड कैसे हैं, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, और उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, वेदर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ डेवलपिंग परसेप्चुअल स्किल्स. तो परसेप्चुअल स्किल्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि नो योर सेल्फ प्रॉपरली. देन फ्रेमिंग पॉजिटिव एटीट्यूड, यू मस्ट पोस्टपोन द इम्प्रेशंस एंड यू मस्ट हैव ओपन कम्युनिकेशन विथ एवरीवन देयर. Then comparing with others, you should avoid this, and diverse management programs. So all these techniques can be used to develop perceptual skills. The next question is what do you mean by values and how to create a value based organization. तो ये कुछ हैं जो value based organization को help करते हैं बनाने में. तो सबसे पहले we have to identify the values of the organization. Then only we can motivate the employees. And we must make them clear and concise about the organizational goals. Recruitment और hiring के टाइम पे भी employees को बहुत ध्यान से चूज़ करना होता है. Performance management is very important. Then communication of the values to the employees, that is also very important one. Then be transparent with them, give them rewards. Then give the take feedbacks of them. तो लाइक दिस, ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. तो कोई भी एक पर्सन की जो पर्सनालिटी होती है कुछ एक फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. पहली है बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो जनरली हेरिडिटी, ब्रेन और फिजिकल फीचर्स पे डिपेंड करती है. सेकंड फैक्टर जो आप लिख सकते हैं अपने आंसर्स में, दैट इज़ फैमिली फैक्टर्स, क्योंकि फैमिली से पर्सनालिटी बनती है और फैमिली में ही हमें मिलता है सोशलाइजेशन प्रोसेस, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस और बर्थ ऑर्डर. तो इनको, ये पॉइंट्स को लेके एक्सपैंड कर सकते हैं. थर्डली मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, एनवायरनमेंटल फैक्टर, जहाँ जो हमारी पर्सनालिटी को हेल्प करती है डेवलप करने के लिए. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब वेरियस पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड इट्स टाइप्स. तो ये 4 टाइप आप लिख सकते हैं. मायर ब्रिग्स पर्सनालिटी, बिग 5, एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट, और टाइप ए एंड टाइप बी टाइप ऑफ पर्सनालिटी. तो इनके मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स, एजम्पशंस जो भी हैं, तो ये आप डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने आंसर्स में. तो बिग 5 में दिस एक्सट्रोवर्सन, एग्रीबलनेस, कॉन्शियस, इमोशनल स्टेबिलिटी, ओपननेस. तो ये सारी डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटी हैं जो हम लोग मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर्स में. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी एंड हाउ डू दिस थ्योरी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द पर्सनालिटी. तो ये 3 टाइप की थ्योरी है पर्सनालिटी की, साइको एनालिटिक, सेल्फ थ्योरी, सोशल लर्निंग. तो इन तीनों थ्योरी के आपको एडवांटेजेस या फीचर्स या फिर एजम्पशंस, जैसे साइको एनालिटिकल में आईडी, ईगो और सुपर ईगो, इनको आपको डिस्क्राइब करना है अलोंग विथ द एग्जांपल्स. लाइक दैट सेल्फ थ्योरी जो होती है दैट इज़ सेल्फ कॉन्सेप्ट को डिफाइन करना है. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ये भी आपको डिफाइन करनी है. रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ को किस तरीके से कॉन्ग्रुएंसी होती है, एंड देन सेल्फ वर्थ. तो ये सेल्फ थ्योरी के मेन कंपोनेंट्स हो गए. देन सोशल लर्निंग थ्योरी में भी कुछ एक है, जैसे ऑब्जर्वेशन किस तरीके से करते हैं हम लोग, मॉडलिंग लाइक फॉलो करते हैं दूसरों को. दैन सोशल कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से ये चीज़ होती है, एंड द की प्रोसेसेस. तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो आप हाईलाइट कर सकते हैं अपने आंसर्स में. The next question, what are the various models of man proposed by Edgar Seen and describe the personality attributes of employees
in influencing organization behavior. तो अकॉर्डिंग टू एडगर देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मैन, जिसको हम लोग बोलते हैं रेशनल इकोनॉमिक मैन, और एक हो गया ऑर्गेनाइजेशन मैन मॉडल, सोशल मैन, सेल्फ एक्चुअलाइजिंग मैन और कॉम्प्लेक्स मैन। तो ये 5 टाइप की पर्सनालिटी बेसिकली इन्होंने आइडेंटिफाई की है। एंड जब हम लोग पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं तो कुछ एक पर्सन होते हैं जैसे थोड़े से ऑथोरेटिव होते हैं, दे लाइक टू गिव ऑर्डर्स, देन लोकस ऑफ कंट्रोल। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इसके एट्रीब्यूट्स को डेवलप करते हैं, पर्सनालिटी के एट्रीब्यूट्स को। ओके, द नेक्स्ट इज़ ऑन स्ट्रेस। व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स कॉजिंग स्ट्रेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ये 2 आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द एग्जाम, इंट्रा एंड एक्स्ट्रा। तो इंट्रा में अगेन देयर आर 2 फैक्टर्स, इंडिविजुअल फैक्टर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर। इंडिविजुअल फैक्टर्स को भी हम लोग मतलब सब डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनालिटी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, फैमिली प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स। तो ये कुछ एक इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं जो एक पर्सन की पर्सनालिटी को शो करते हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर की बात करते हैं तो उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग कंडीशन, ऑर्गेनाइजेशनल टास्क कैसे हैं, वेदर हार्डर और ईजियर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और डिज़ाइन कैसा है, लीडरशिप स्टाइल कैसी है और ग्रुप डायनामिक्स कैसे हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर हो गए। व्हेन वी टॉक अबाउट एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट फैक्टर, तो इसके अंदर ये सारे फैक्टर आप डिस्क्राइब कर सकते हो, दैट पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इकोलॉजिकल एंड सोशियो कल्चरल फैक्टर। तो ये हो गए आई मीन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो फैक्टर्स हैं जो पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ स्ट्रेस। तो इससे नुकसान तो होता ही है, पर्सन का भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन का भी होता है। एंड ये कुछ एक हैं जैसे फिजियोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस जो जनरली पर्सनल पर्सनालिटी को अफेक्ट करते हैं, देन साइकोलॉजिकल जो मेंटल स्ट्रेस लेवल को अफेक्ट करते हैं, बिहेवियरल कंसिक्वेंसेस और ऑर्गेनाइजेशनल कंसिक्वेंसेस। तो ये कुछ एक फैक्टर्स हैं जो आप लिख सकते हैं इसके अंदर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वेरियस टेक्निक्स ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए 2 टेक्निक है आपके सिलेबस में, वन इज़ इंडिविजुअल, द अदर इज़ ऑर्गेनाइजेशनल। इंडिविजुअल के अंदर ये 5 टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, इनको लर्न करना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट वन, जैसे टाइम मैनेजमेंट, फिजिकल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, सोशल मैनेजमेंट कर सकते हैं, फ्रेंडशिप आई मीन फ्रेंड्स बनाना या फिर पार्टीज़ में जाना, देन सेल्फ अवेयरनेस। ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट भी कर सकते हैं वाइल सिलेक्टिंग द एम्प्लॉयज़ एंड प्लेसिंग देम, जॉब एनरिचमेंट एंड जॉब डिज़ाइन, ये बहुत अच्छा टेक्निक है टू मैनेज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेस। देन कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग ऑफ द एम्प्लॉयज़, दिस इज़ अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो लाइक दिस ये 6 टेक्निक्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय कर सकती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, write the features of motivation, identify the different types of motivators and how organization motivate employees. तो first in this you can write what is motivation और इसके main characteristics, और ये 2 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स के बारे में along with the examples एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड जब बात आती है ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती है, तो ये मनी आई मीन इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती है, जॉब रीडिज़ाइनिंग कर सकती है, उसको ज़्यादा और इंटरेस्टिंग बना सकती है, एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द मैनेजमेंट डिसीजंस, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ इम्प्रूव कर सकती है, परफॉर्मेंस अप्रेजल दे सकती है, एंड लास्टली MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। सो लाइक दिस। ओके, कुछ एक थ्योरी है मोटिवेशन के, जैसे ये मैक्लेलैंड थ्योरी है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है आपको, जो जनरली इसके 3 पार्ट्स हैं, अचीवमेंट, पावर एंड एफिलिएशन। तो इसको लेके आप ये थ्योरी को एक्सपैंड कर सकते हैं। एक और थ्योरी करके जानी चाहिए फॉर दिस मोटिवेशन, पोर्टर एंड लॉलर का थ्योरी। तो इसका भी जो मेन एजम्पशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये बेसिकली ये थ्योरी रिवॉर्ड्स एफर्ट्स पे बेस्ड है। तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन लर्न एंड एक्सपैंड। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन जॉब डिज़ाइनिंग। What are the factors influencing job designing and what are the various models of job designing? तो जॉब डिज़ाइनिंग के जो फैक्टर्स हैं ये लिख सकते हैं, जैसे गोल्स,
task accomplishment, task variety, task significance, job function and job relations. तो ये कुछ एक मतलब फैक्टर्स हैं जो जब हम लोग जॉब डिज़ाइनिंग करते हैं तो कंपनी को ध्यान रखना होता है कि हाउ टू मेक द जॉब more interesting to the employees. And when we talk about the different models, approaches of job designing, तो ये 5 टाइप के मॉडल क्रिएट कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन. जैसे टास्क को लेके कर सकती है, टास्क के कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके कर सकती है, सोशल प्रोसेस को लेके कर सकती है, कंटिजेंसी मॉडल क्रिएट कर सकती है विच इज़ बेस्ड ऑन टाइम एंड सिचुएशन, एंड एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट मॉडल भी बना सकती है. फाइन. The next question is what are the various techniques of job redesign and also state their advantages. तो कोई भी जॉब को रीडिज़ाइन करने के लिए जॉब एनरिचमेंट होना बहुत ज़रूरी है, जॉब का एनलार्जमेंट होना, जॉब रोटेशन कर सकती है सो दैट एम्प्लॉयज़ फील मोर अटैच्ड टू द वर्क. देन जॉब री इंजीनियरिंग कर सकती है. ये आपको शॉर्ट नोट्स में भी मिल सकते हैं, तो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस. एक डिटर्मिनेंट्स ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, इसके ऊपर भी कर सकते हैं क्वेश्चन, एंड हाउ टू मेज़र द जॉब सेटिस्फैक्शन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो यहाँ पे 2 डिटर्मिनेंट्स हैं, एक तो ऑर्गेनाइजेशनल है और एक इंडिविजुअल है. अगेन ऑर्गेनाइजेशन मॉडल में सैलरी, वेजेस, नेचर ऑफ वर्क, वर्किंग कंडीशन, अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन, तो ऐसे ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो जॉब सेटिस्फैक्शन के लेवल को मेज़र करते हैं. और इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स के अंदर आ गई एम्प्लॉयज़ की पर्सनालिटी, एज, एजुकेशन और जेंडर डिफरेंस. तो ये हैं चीज़ें जॉब सेटिस्फैक्शन. और व्हेन यू ट्राई टू मेज़र द जॉब सेटिस्फैक्शन, जनरली a company uses these 3 scales: rating scale, personal interview and critical incidents. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको करके जाना चाहिए फॉर द एग्ज़ाम, व्हाट इज़ ग्रुप, इसके सिग्निफिकेंस क्या है, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द ग्रुप फॉर्मेशन. तो ये इसके यहाँ पे ये पॉइंट्स, आई मीन फैक्टर्स एंड फैक्टर्स विच अफेक्ट ग्रुप फॉर्मेशन. एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क ग्रुप. तो इसके अंदर फॉर्मल और इनफॉर्मल 2 ग्रुप हैं, और इनके अगेन डिफरेंट टाइप्स, आई मीन फॉर्मल ग्रुप के 4 टाइप हो सकते हैं. तो ये आपको एक्सप्लेन करने हैं, लर्न करने हैं फॉर द एग्ज़ाम. You can also get one difference between formal and informal group. So this is one very important one. The next question is describe the stages of group formation. तो ये 5 stages हैं: forming, storming, norming, performing and adjourning. तो ये मैंने previous videos में भी बहुत बार ये सब चीज़ों को explain किया है, तो you must watch the previous videos also. Now the next question is significance of communication in an example and how to make the communication effective. तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जैसे कोऑर्डिनेशन, क्विक डिसीजन, मैनेजरियल एफिशिएंसी, कोऑपरेशन और मोटिवेशन. तो ये इसके मतलब हेल्प करती है कम्युनिकेशन इन सब चीज़ों के लिए. एंड हाउ टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव, सो यू मस्ट रिवाइज दिस प्रॉपर्ली. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. MCO 01 काफ़ी लेंदी सब्जेक्ट है, एंड यू नीड टू लिटिल बिट वर्क हार्ड फॉर दिस. The next question is explain 4 stages of conflict process and analyze the impact of conflict in an organization. So stages, ये 4 stages हैं जो conflict को it helps to break the conflict, and इसके positive and negative effect दोनों ही आपको लिखने हैं in the exam. These are the negative impact and these are the positive impacts of conflict in an organization. The next question is describe in detail the level of conflict that may arise in the organization and what measures would you take to resolve these conflicts. तो ये 3 टाइप के conflict हैं जो organization में arise करते हैं: intra, inter and organization conflict, and again they are subdivided into different parts. So you need to revise this properly for the exam. And when we talk about resolving the conflict, the organization may take all these steps. It can ignore the conflict, it can make them physically separate, it can withdraw the conflict, it can dominate, request. So like this, so different process and different methods and to resolve the conflict. Okay, the next is on leadership style, or a function, I mean what are the important functions of a leader.
तो ये 3 टाइप के स्टाइल आपको लर्न करने हैं फॉर द एग्ज़ाम, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेसिस फेरी, और इसके रिलेटिव मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ऑल दीज 3. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the various sources of power in an organization and explain the process of obtaining power. तो ये इम्पोर्टेंस ऑफ पावर के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं, और फॉर्मल और इनफॉर्मल ये 2 मेन सोर्सेस हैं पावर के, एंड अगेन दे आर सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स. जैसे फॉर्मल पावर एक्वायर करने के लिए लेजिटिमेट पावर, रिवॉर्ड, कोएर्सिव और इंफॉर्मेशन पावर. तो ये 4 इसके अंदर सब डिवीज़न को आप डिफ़ाइन कर सकते हो. इनफॉर्मल में एक्सपर्ट पावर, रेफरेंट पावर एंड charismatic पावर. तो ऑल these things can be explained. Okay, let's move on to the next question. Describe organizational culture, discuss its elements and also the factors which affect organization culture. तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जब बात करते हैं तो उसके अंदर लीडरशिप, कम्युनिकेशन, वैल्यूज़, इनोवेशन, रिकॉग्निशन, तो ये सब चीज़ें हैं दैट मेक्स द कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. एंड ये कुछ एक फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को इन्फ्लुएंस करती हैं. इसके अंदर इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल, तो 2 टाइप के हो सकते हैं. और इंटरनल फैक्टर्स के अंदर जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, लीडरशिप, वैल्यूज़, कम्युनिकेशन, रिवॉर्ड, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. एंड एक्सटर्नल पावर के अंदर आउटसाइड पावर है. तो इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या है, टेक्नोलॉजी कैसी है, सोशल वैल्यूज़ क्या हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, कॉम्पिटिटर्स के एटीट्यूड क्या हैं. तो लाइक दिस, सो ऑल दिस थिंग्स कैन बी explained. The next question is what are the important elements to be targeted for change in an organization and explain the important strategies to implement a change. तो ये कुछ एक हैं 4 main elements of change: human resource, functional resources, technological capabilities and organizational abilities. तो ये basically change को influence करते हैं. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजीज ऑफ चेंज, तो यहाँ पे इवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकती है कंपनी, विच इज़ वेरी क्रिएटिव स्ट्रैटेजी. और एक है रिवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजी विच इज़ अगेन सब डिवाइडेड इनटू 3: री इंजीनियरिंग, रिस्ट्रक्चरिंग एंड इनोवेशन. तो ये क्वेश्चन ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. कोर्शियन स्ट्रैटेजी है जो ज़बरदस्ती कोई चीज़ को मतलब इम्पोज करना. परसुएशन स्ट्रैटेजी है कन्विंस करना. और शेयर्ड पावर स्ट्रैटेजी. तो ये कुछ एक स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकती है कंपनी. फाइन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स अंडरलाइंग द वैल्यूज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. ओडी का क्वेश्चन है एंड इसके मेन प्रोसेस क्या है ओडी के. तो फर्स्ट, व्हाट इज़ ओडी, इसके मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और ओडी प्रोसेस, ये एग्ज़ाम में बहुत बार आता है क्वेश्चन. सो बी वेरी पर्टिकुलर, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन. Okay, the next one, explain the various emerging trends in organization behavior and how do they influence the organization. So these are the trends, I mean globalization, technology, employees participation, ethical consideration. ये कुछ एक चीज़ें हैं जो अभी काफ़ी पॉपुलर हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड इनका इन्फ्लुएंस के बारे में आप लिख सकते हैं. मीन कॉमन अपने वर्ड्स में भी हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं इसके अंदर. एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, हाउ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी मैनेज्ड इफेक्टिवली. तो दिस इज़ ऑल्सो नीड्स योर अटेंशन. So my dear friends, these are some important questions for this exam, and I hope this video will help you to prepare well, and a very best of luck for the exam, and thank you very much for watching this video.